Praise the Lord and welcome to Father's Care Church Online. We are so blessed and privileged to have you join us here this morning. And I know that we have an awesome service in store for you. So just before we get into it, let's say the Lord's Prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the glory and the power forever. Amen. Amen, amen. I know that we have an awesome service for you now, so let's just get ready to clap our hands and lift up a joyful noise unto our Maker as we get into worship with the Father's Care worship team. Praise the Lord, church. We are so blessed and privileged to have you join us here this morning. So we're going to go straight into worshiping our God, our Creator, our Father. So lift up your voices unto Him. Lift up your hearts unto Him. For His love is so great. Thank you, Jesus. We thank you for your unconditional love towards us, Jesus. And I worship you and I give you praise. Yes, Lord. Your love's so great, we sing. Your love's so great, Jesus, in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years. Still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. Creation calls. Creation calls, all to the Savior. We are alive in your praise, in earth and sky. No one is higher. How God, I wonder you reign. How God, I wonder you reign. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, Outshine. all the stars. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, to your name we lift up all praise. Not to us, but we lift up all praise. Not to us, we lift up
We worship you, Jesus. We cry out for your name, Lord. We lift up our hearts unto you, Jesus. How beautiful is your name. How powerful is your name. How peaceful is your name. We trust in you, Jesus. तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, sing it out, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन. We cry out, Emmanuel, for you are with us, Jesus. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Thank you, Jesus. We cry out, Emmanuel. Yes. Holy, holy, I will bow before my Lord and King. Hallelujah, you have come to us. You make all things new. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, my shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, we worship, yeah. So amazing. So amazing. You have named the stars of the deepest night. Still you love me. You have called my name. I will follow you. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. You're watching over me. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, you're watching over me. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. For you are with me, Jesus. Emmanuel.
Emmanuel means our God is with us in everything, in every situation. That's why we cry out holy. We sing. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Yeah. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Yeah. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Hey. Holy, holy, God Almighty, there is none like you. Hey. God Almighty, God Almighty, yeah. Like you, yeah. La, 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 la. God Almighty, there is none like you. One more time. You are God Almighty. There is none like you. God Almighty. There is none like you. As I worship your majesty, I worship your holy name, Jesus, my everything. All that I am is yours. I worship your majesty. I worship your holy name, Jesus, my everything. Yeah. All that I am is yours. I worship your majesty. I worship your holy name, Jesus, my everything. All that I am is yours. I worship your majesty. I worship your holy name, Jesus, my everything. All that I am is yours. Hey church, we hope you are staying safe and staying connected with one another. If you have any prayer requests or in need of a person to talk to, simply contact us using the details on the screen to get in touch. We encourage you to continue your generosity and giving what belongs to the Lord. On the screen are our online account details which you can use to tithe. Now, let's prepare our hearts for the word and what the Lord has in store for us today. प्रभु की जय। ये नया साल आप सबको मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज जबकि हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे इस नए साल में, जबकि हम प्रवेश कर चुके हैं, धर्मशास्त्र से हम देखते हैं एक्स चैप्टर 16 और वर्स 25 को मैं पढ़ता हूँ, 25 and 26। इसमें इस प्रकार लिखा है, But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was a great earthquake.
so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. Let's bow our head in prayer. Father, we say thank you for this message, for this new year, Lord. We say thank you for your love and mercy which endures forever. We praise your holy and precious name. In Jesus' name we pray now. Amen. जबकि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और हर एक इंसान, हर एक लोग के एक अंदर में एक भावना है, एक ख्यालात है कि ये जो साल में, जबकि हम नए साल में आ गए हैं, इस साल में बहुत से बदलाव होगा। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं, बहुत से लोग होप रखते हैं कि इस साल में बहुत से बदलाव हमारे जीवन में आएगा, हमारे घर में आएगा, घरों में आएगा, हमारे दोस्तों में आएगा, हमारे बिजनेस में आएंगे बहुत से बदलाव, अपने बच्चों के जीवन में बहुत से बदलाव को देखोगे। ये बहुत से सबके एक उम्मीद है, एक आशा है। और बाइबल कहता है कि जिस जगह से तुम गुजर रहे हो, उस जगह जो है जहां से आप है अभी जुड़ा है, जहां से भी आप सोचते होंगे कि ये नए साल में ये बदलाव कैसे आ सकता है। शायद पिछले 2-3 साल से आप उम्मीद करते हैं, ऐसा कोई बदलाव देखा नहीं। नया साल आया और चला गया, साल आते रहे और जाते रहे और आप में कोई बदलाव नहीं है। शायद आप बहुत दिनों से इन चीजों के लिए प्रार्थना भी करते हो, प्रार्थना करते हैं कि मैं ये सब बदलाव आएगा, मेरा जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, ये अच्छा हो जाएंगे। हर समय, हर साल उम्मीद करते हो कि अच्छा होगा, लेकिन साल आता है, साल जाता है, लेकिन कोई बदलाव कहीं पर आप देख नहीं सकते। आपको देखने का मौका नहीं आता कि हम नए साल को किस तरह से नया करेंगे। कुछ नया होगा, हमारे जीवन में कुछ नया होगा, हमारे घरों में कुछ नया होगा। और यही उम्मीद में, यही आशा में आप हर दिन, हर रात अपने जीवन को व्यतीत करते हो। शायद दुखी हो आज आप, पिछले सालों से दुखी है, शायद पीड़ित हो, शायद मन निराशा हो, चाहे मन में आज बहुत से निराशा, बहुत से खुशी के पीछे आप भागते रहे, लेकिन आज उस घड़ी पर खड़ा है आप आकर, उस जगह पर खड़ा है जहां पे कोई रद्दो बदल नहीं, कुछ बदलाव नहीं, खाली साल बदल चुका है, 21 से 22 आ गया, लेकिन तुम अपने बदलाव को नहीं देखते हो। बाइबल कहता है इसी प्रकार 2 व्यक्ति, पॉल और साइलस, धर्मशास्त्र हमें बतलाता है कि ये 2 व्यक्ति एक ऐसे जंजीर में जकड़े हुए थे, इन दोनों के आगे मौत रखा है। ये दोनों बहुत दुखी हैं और बहुत मुसीबत में है, कठिन समय के सामना करता है। इन दोनों के जीवन में उजियाला नहीं है, सिर्फ रात है और रात के सिवाय कुछ नहीं। शायद आप ऐसे व्यक्ति से संबंध रखते हो आज, शायद आप अपने जीवन में इस अंधियारा जीवन को महसूस करते हो। जहां भी तुम है, जो भी दुख और मुसीबत से तुम गुजरता है, ये अंधियारा के सिवा और कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन में। कहीं से भी एक रोशनी नहीं दिखाई देता, कहीं से भी एक आसरा नहीं दिखाई देता। बहुत से लोगों से आशा की आवाज को सुना, लेकिन कोई मदद नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन जो है वो अंधियारा समय से बदला नहीं,
एक अंधियारा जीवन को तुम व्यतीत करते हो। साल के बाद साल बदल चुका, लेकिन आप वहीं के वहीं हो, क्योंकि आप उसी अंधियारा जीवन में जीते हो। पौल और साइलस भी ऐसे समय में, ऐसे अंधियार में एक साथ इकट्ठे हैं, दोनों एक साथ, और दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि दोनों जेल में हैं। सोने के वजह ये लोग जागते हैं, क्योंकि जब इंसान के ऊपर मौत मंडराता है, जब इंसान के ऊपर दुख मुसीबत उसके ऊपर मंडराता है, तो उस व्यक्ति के जो नींद है वो चले जाता है, उसका नींद नहीं आता। और बाइबल कहता है कि ये समय में ये दोनों एक साथ है और दोनों मिलकर परमेश्वर की बढ़ाई को करते हैं। बाइबल सेज दे आर प्रेजिंग गॉड। परमेश्वर के वचन कहता है कि ये दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा करता है, उसकी बढ़ाई को करता है। बाइबल सेज इफ टू शैल एग्री concerning anything in my name, it shall be done by my Father in heaven, Jesus said. He's saying the same thing to you. अगर कहीं पर भी दो व्यक्ति मिलकर किसी एक चीज पर निर्णय कर ले, वो तुम्हारे लिए प्रभु यीशु कर देगा, क्योंकि उसने मैथ्यू 18 और 19 में इस बात को उसने लिख कर दिया है। हालेलुया। This is the promise of God. पौल और साइलस दो व्यक्ति एक साथ में मिलकर और परमेश्वर की बढ़ाई करता है। ये बढ़ाई क्या होता है? What is praise? Why do we praise God? And what do we praise Him for? किस बात के लिए परमेश्वर की बढ़ाई हम करते हैं? क्यों करते हैं बढ़ाई? बाइबल कहता है ये जो प्रेज है, उसके नाम की तुम बढ़ाई करते हो, क्योंकि जो कुछ उसने तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए किया है, उसके लिए तुम परमेश्वर की बढ़ाई को करते हो। इट इज कॉल्ड प्रेज। यू प्रेज हिम बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन इन योर लाइफ। व्हाटएवर ही हैज डन इन योर लाइफ, यू आर प्रेजिंग हिम फॉर दैट। Paul and Silas together, they are praising God in the middle of the night, in the middle of the darkest hour of your life. Bible says, praise God for everything that He has done to you, into your life, into your family life. हर एक चीज के लिए परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं लोग, बढ़ाई करते हैं। They are rehearsing on every single thing that God Almighty has done in their life. Paul and Silas continuously they are praising God. Something happens when a person begins to praise God continually. Something happens inside of them. जब एक व्यक्ति हमेशा अपने जुबान से, अपने हृदय से उस महान परमेश्वर की बढ़ाई को करता है, हर एक छोटी छोटी बातों में, हर एक छोटा से छोटा मिरेकल में या बड़ा से बड़ा मिरेकल में, जो भी अद्भुत और आश्चर्य काम परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करता है, और तुम दिन रात उसकी बढ़ाई को करते हो, दिन प्रतिदिन तुम उसकी बढ़ाई को करते हो, तुम्हारा जीवन बदल जाता है। A praising person, his life changes. He becomes, he has a thankful heart, a grateful heart. उसके जो हृदय है, वो इंसान के जो हृदय है, वो बदल जाता है, वो खुशी से भर जाता है, उसके अंदर में खुशहाली आता है।
और वो मनुष्य जो खुशी से भरा है, जो इंसान खुशी से भरा है, जिसके अंदर में खुशहाली के भंडार है, वो इंसान किसी भी जगह पर अपना पांव रखता है या किसी के आंगन में, किसी की दहलीज पर कदम जब रखता है वो, या किसी एक कार्य पर अपना हाथ रखता है, परमेश्वर के वचन कहता है कि वहां पर वो खुशहाली से भर देता है, वहां पर वो आशीष से भर देता है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, जो इंसान परमेश्वर की बड़ाई और महिमा और आराधना करता है, उसका जीवन एक बदलाव का जीवन है। हम सब इस बदलाव को चाहते हैं, हम बदलाव देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चन में, अपने लड़कन में, अपने लड़की, अपने बेटा और बेटी के जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं। हम अपने घर और घराने में बदलाव देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो साल है 2022, इसमें बहुत से बदलाव आए, बहुत से चेंजेस आए लाइफ में, कि हमारे रहन सहन सब कुछ बदल जाए, हमारे जो लोग हैं उनके बीच में हम बदल जाएं, हमारे में बदलाव आए, कि बढ़ंती आए। अगर आज तुम गरीब है तो तुम चाहते हो कि तुम एक धनवान व्यक्ति बने। अगर आज तुम आज एक नाकामयाब आदमी हो, तुम एक कामयाबी पाना चाहते हो। आज जो भी तुम है, जो भी जहां से भी तुम सुनते हो, हर एक इंसान बदलाव चाहता है। दूसरों में हम बदलाव को खोजते हैं, हमेशा हम दूसरों में बदलाव को ढूंढते हैं। हम जानना चाहते हैं कि बदलाव आता है कि नहीं। बाइबल कहता है हमें खुद को बदलना है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर किसी एक को बदलना है, किसी एक समस्याओं को बदलना है, किसी एक हालात को बदलना है, किसी के घर में बदलाव लाना है, किसी के बच्चन लड़कन में बदलाव लाना है, किसी संस्था में बदलाव लाना है, किसी देश में बदलाव लाना है, तो तुम्हें खुद बदलना यह निहायत जरूरी है। यही बाइबल सिखलाता हमें आज। दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद बदलना है। पौल और साइलस की तरह अपने जुबान में परमेश्वर की बड़ाई करना है, क्योंकि बाइबल कहता है इस पूरी शरीर के सबसे छोटा जो अंग है वो हमारा जीभ है, हमारा टंग। अब बाइबल कहता है प्रोवर्ब्स 18:21 में कि परमेश्वर ने जिंदगी और मौत की ताकत उस छोटा सा अंग जिसको हम जीभ कहते उसमें दिया। The Bible says the power of life and death is in your tongue. Hallelujah. इसमें बदलाव लाना है, इस जीभ में, इस जुबान में एक बदलाव लाना है। किसी और के बदलने से पहले, अपने घर को बदलने से पहले, अपने दोस्तों के जीवन को बदलने से पहले, अपने पति और पत्नी को बदलने से पहले खुद को बदलना है, अपनी जुबान को बदलना है। प्रेज गॉड। अगर कुछ बदलना है तो हमें अपना जुबान को बदलना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमारे जुबान में बदलाव आना चाहिए। हम अपने जुबान से परमेश्वर की बढ़ाई को शुरू करें। हम ग्लोरी टू गॉड। धर्मशास्त्र कहता है कि पौल और साइलस अपने बर्बादी के बारे में बात करना नहीं किया, अपने मौत के बारे में नहीं बात किया।
वो रात भर परमेश्वर की बड़ाई को करता रहा। अपने जिंदगी के बुराई को नहीं देखा उसने, उसके बारे में उन लोगों ने बातें नहीं की कि कल सुबह अगर हमें फांसी चढ़ना पड़े, उसके बारे में उन लोगों ने बातें नहीं की। यहां से आगे जिंदगी में होगा क्या, उसके बारे में बातें नहीं की। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई रात भर करते रहा। उन लोगों के अंदर से सिर्फ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर के एक एक कार्य के लिए वो बढ़ाई करते रहे। वो परमेश्वर के धन्यवाद देते रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे, बढ़ाई करते रहे। बाइबल कहता है वर्स 26 में, suddenly there was a great earthquake so that the foundations of prison were shaken. Hallelujah! कि अचानक से बाइबल कहता है कि बीच रात में 12 बजे अचानक से पूरी जेल को हिलाई गई। जिन जंजीरों में उन लोग को बांध कर रखा था वो टूट गया। आज कौन सा जंजीर में तुम बंधे हो? आज कौन सा दुख और मुसीबत में तुम घिरान है? आज कौन सा जिंदगी में जो आज तुम्हारे लिए तबाही है? कौन ऐसा जीवन में, कौन ऐसा जिंदगी को तुम व्यतीत करते हो? कौन ऐसा हार के जीवन तुम जीते हो? कौन ऐसा जो जीवन है जिससे तुम थक गया? बाइबल कहता है कि तुम्हारे जबान में वो ताकत है जो परमेश्वर ने दिया। आज का दिन, आज सुबह परमेश्वर को ने तुम्हें वो ताकत दिया है तुम्हारे जबान पर, और तुम्हारे जबान में लाकर रखा है कि तुम परमेश्वर की बड़ाई करो। चाहे कितना आंधी और तूफान के बीच में क्यों ना तुम हो, लेकिन परमेश्वर के आज तुम महिमा करो, उसके बड़ाई को करो। दुख है, मुसीबत है, कठिन समय है, बहुत अंधेरा रात है, जीवन में दिखाई नहीं देता रोशनी, उस पार नहीं दिखाई देता। इसके बीच में बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के बड़ाई करो। जब भी तुम्हारा जबान खुलता है वो सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई के लिए उठे और कुछ नहीं। हालेलुया! बस यही परमेश्वर चाहता है कि तुम बड़ाई को करें। हाँ, बाइबल कहता है बड़ाई करते करते तुम्हारा जो मन है, तुम एक नए इंसान बनते हो, तुम्हारे अंदर बदल जाता है, तुम परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति बनते हो। तुम्हारे अंदर में वो खुशी आता है कि जहां पर तुम अपने कदम को रखते हो, खुशहाली तुमसे आगे आगे जाता है। तुम्हारे हर एक उबड़ खाबड़ रास्ते को परमेश्वर चौरास बनाता है। जिस जंजीरों में तुम आज जकड़े हो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूं, वो जंजीरों से तुम छूट जाओगे और तुम्हारा जिंदगी जो है एक आजाद हो जाएगा, और आजादी के ओर तुम बढ़ोगे और एक आजादी का जीवन को व्यतीत करेंगे। बाइबल कहता है इसमें कि सडनली देयर वाज अ ग्रेट earthquake। पूरी फाउंडेशन हिलाई गई, वो जेल हिल गया, और जो दरवाजे थे जो बंद थे वो खुल गया, वो फाटक भी खुल गया। क्या तुम आज किसी जंजीर से जकड़ा है, या तुम आज बंधुआई में बंधा है? आज कुछ ऐसे आदतों में आज तुम बंधा है, जिन आदतों से तुम निकलना चाहते हो, तुम कोशिश करते हो लेकिन निकल नहीं पाते। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, ये नए साल में एक नया काम कीजिए। आप परमेश्वर की बड़ाई शुरू कर दें। बुराई को छोड़कर, बदनामी को छोड़कर, आलोचना को छोड़कर परमेश्वर को, उस महान परमेश्वर के तुम अपने जुबान से सिर्फ बड़ाई करें और कुछ नहीं, सिर्फ बड़ाई। वो बदलाव अचानक से आएगा, अचानक से तुम्हें हिलाई जाएगी,
वो जंजीर जिसमें तुम जकड़े हो वो टूटेगा, वो फाटक खोलेगा और तुम आजाद हो जाओगे और उसमें से निकलकर परमेश्वर की महिमा करोगे। ये साल 2022 में ये बदलाव तुम अपने जीवन में देखोगे। जब तुम्हारा जीवन बदलता है, जहां भी तुम जाते हो बाकी सबका जीवन तुम्हारा द्वारा बदलेगा। अगर विश्वास करते हो, इस समय परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, जो तुम सुना है वो परमेश्वर की ओर से है, मैं चाहूंगा कि हम प्रार्थना करें जहां भी तुम है। हे महान परमेश्वर, तेरा पवित्र वचन को सुना, तुम्हारा बहुमूल्य वचन को सुना, वो वचन जो जीवित है और प्रबल है। हे प्रभु, एक ऐसा जीवन हमें दे प्रभु, जहां पर हम अपने जुबानों से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बढ़ाई को करें, तुम्हारी महिमा को करें। जब भी हमारा जुबान खुले उसमें तुम्हारा बढ़ाई रहे प्रभु। ये आशीष से हर एक लोग को जो सुनते हैं वचन को, जो विश्वास लाया, उन लोगों पर ये बदलाव ला प्रभु आज, ताकि ये साल में वे लोग तुम्हारी महिमा को कर सके। धन्यवाद पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और हम सब मिलकर कहें आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो। ये साल बहुत सुंदर साल हो आप सबके लिए। ये नया साल में एक नया जीवन को तुम अपने जिंदगी में महसूस करोगे। हम धन्यवाद देते आप सभी को। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ। हैव अ ब्लेस्ड 2022। आमीन।